آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیب نے میری ضمانت کینسل کروانے کی درخواست مسترد ہونے کے خوف سے واپس لی۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت۔ عدالت نے شہباز شریف اور دیگر ملزمان کی حاضری مکمل کی۔ پروسیکیوٹر کے بولنے پر اپوزیشن لیڈر نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بات کرنے دیں۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ سپریم کورٹ میری ضمانت کینسل کرانے گئے تو عدالت نے کہا شہباز شریف نے پنجاب کے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا۔ عدالتی ریمارکس کے بعد نیب نے درخواست مسترد ہونے کے شبہ پر ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ نیب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ پی ٹی آئی نے این اے 133 میں عوامی رد عمل کے خوف سے راہ فرار اختیار کی۔ پی ٹی آئی کا ووٹر آدھا ووٹر ایسا ہے جو شرمندہ ہے اور جس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے 2018 میں کس کو ووٹ دیا تھا تو وہ نظریں جھکا لیتا ہے اور سر نیچے کر لیتا ہے اور اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ دوسرا ووٹر ایسا ہے جو ابھی اس تذبذب میں ہے کہ اگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو تحریک انصاف کی حکمت عملی ٹھیک تھی کہ انہوں نے اس حلقہ سے راہ فرار اختیار کی۔ کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ کیمرامین طاہر کھوکھر کے ساتھ شکیل سعید، 92 نیوز، لاہور۔ دوسری جانب سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ نیب نے لوگوں کی زندگیاں اور کاروبار تباہ کر دیے۔ نیب کارروائیوں کے باعث لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وقت آئے گا جب نیب والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ نیب کوٹ اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بہت جلدی نیب کا احتساب شروع ہوگا کہ انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں، لوگوں کی بدوائیں لی ہیں، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ کیا انکوائری کی آپ نے؟ یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن ان کو سامنا کرنا پڑے گا ان چیزوں کا۔ جو ان کی فیملیز باہر پڑ رہی ہیں، ان کے پیسے کون بھر رہا ہے، ان کو کس نے باہر بھیجا ہوا ہے، اور یہ کس ایک گریڈ 19 آفیسر، ایک گریڈ 20 آفیسر یہ کیسے یہ کام کر رہا ہے۔ ساری ڈپلومیٹک کور، ساری ایمبیسڈرز یہ کہتے ہیں، جن سے میں ملتا ہوں وہ کہتے ہیں دس از the worst institution we have seen in a country which is used to attack the opposition۔ اور آپ کو اہم خبر دیں کہ ایف بی آر نے ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی پر کڑی سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ ٹیکس حکام کو فرائض کی ادائیگی سے روکنے پر 3 سال قید ہوگی۔ دستاویز کے مطابق متعلقہ ریکارڈ تک رسائی نہ دینے پر 5 سال قید ہوگی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اکرام ہوتی سے۔ اکرام ہوتی بتائے گا، سزائیں تو مقرر کر دی گئی ہیں، عمل درآمد بھی ہوگا؟ جی بالکل، یہ اس کے اختیارات دے دی گئے ہیں ٹیکس حکام کو کہ اگر وہ کوئی بندہ آپ کو اپنے گودام میں جانے سے روکے اور وہ مال جس پہ ٹیکس لگنا ہے اور وہ مال آپ کے سامنے پیش نہ کرے ٹیکس حکام کے سامنے، تو اس کو سزا ہوگی۔ سیل کردہ گوداموں میں سے مال نکالنے پر بھی 25,000 روپے جرمانہ اور ٹیکس کا 10% ادا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ 1 سال قید بھی بھگتنا ہوگی۔ ایف بی آر حکام جو ہیں ان کو ٹیکس سے متعلق ریکارڈ جو ہے اس تک رسائی اگر نہ دی گئی تو 5 سال کی سزا ہوگی۔ بزنس آفس یا گودام تک رسائی میں رکاوٹ اگر ڈالی تو سنگین جرم قرار دے دی جائے گا۔ قید کے علاوہ 25,000 روپے جرمانہ یا 100% طلب شدہ ٹیکس بھی دینا ہوگا۔ ایسے بزنس کے خلاف اسپیشل جج کی عدالت میں مقدمہ چلے گا اور جس پہ مقدمہ چلے اس کو اپیل کا بھی حق حاصل ہوگا۔ جی، اپیل کا حق بھی حاصل ہوگا مقدمہ چلنے پر۔ بہت شکریہ اکرام ہوتی ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آئرلینڈ میں نئی امیگریشن اصلاحات بہت سے بغیر کاغذات افراد کی زندگیاں بدل دیں گے، اس لیے یہ لوگ جشن منا رہے ہیں اور حکومت کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے نمائندے فیصل مرزا کے ساتھ اہم حکومتی ممبر پارلیمنٹ ڈپٹی نیل رچمنڈ موجود ہیں۔ نئے قانون کے حوالے سے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ Yes, we are here outside the Taoiseach office with the Deputy Neil Richmond, and we asked him what this is all about. Neil, welcome to 92 News. People are standing to say something about this scheme. Yes, today is a very happy day for many people in Ireland. It's a new announcement by Minister of Justice Helen McEntee for a new scheme where those who've been here illegally, where we can regularise them, get their documentations. They no longer have to live in fear. They've been contributing to society for a long time, and now they have a scheme that they can stay here, and more importantly, they can become Irish in due course. Neil, for this scheme, to apply for this scheme, do we need these kind of people? They're not familiar with English or they're not educated. They need some consultants to fill this application, or they can do it on their own?
they should be able to do it their own. Language capabilities depending, but there are lots of NGOs that will help with it. The cost of the application is €550 for an individual, or €750 for a family. If you've been here for 4 years, you're qualified. There's other people who maybe their asylum status hasn't been processed, so they've been here for a bit longer. It's a very straightforward scheme. It's long overdue, and it's making a lot of people happy, and it'll be very, very good for the entire country. When it was the beginning scheme, there was a rumor that it's just only for asylum seekers, but today Mr. Chief clearly said that it's for students as well, and anyone who is here in this state can apply for this. How you see this? I think it's really important. There's lots of people through no fault of their own who overstayed their visa. They may have been in education, they may have maybe gotten into a relationship, got work, or unable to go home, which is quite common. Add in the complications of the pandemic. So this gives everyone a pathway, not just those who had failed asylum applications, a pathway to remaining here, to being legal for the condition goes. Thank you, Neil. Thanks. As you can see that Deputy Neil, he said that everyone is happy today here today in Ireland. It's a very big step for the migrants community to integrate them in this Irish society. Yes. सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मशीर नौशीन वसीम ने कहा है कि रियाद सीज़न दुनिया के लोगों को तफरीह मुहैया कर रहा है, जहां मकामी और बैरून ममालिक से आने वाले अफराद तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इसमें गुज़िश्ता सीज़न की तरह भारत और पाकिस्तान के फ़नकारों की शिरकत को भी यकीनी बनाया गया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मौसम रियाज के मीडिया सेल में पाकिस्तानी और भारतीय सहाफ़ियों समेत दीगर अफराद से सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मशीर नौशीन वसीम ने मुलाकात की और उन्हें ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मौसम रियाद कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और गुज़िश्ता सीज़न की तरह इस सीज़न में भी भारत और पाकिस्तान के लाखों अफराद के लिए सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से तफरीही इवेंट के लिए इक़दाम किए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के फ़नकार और गुलकार दोनों ममालिक में यकसा मकबूल हैं और दोनों ममालिक के फ़नकारों को रियाद सीज़न में परफॉर्म करवा रहे हैं। पहले मरहले में सलमान खान जैसे सुपरस्टार अपने दीगर फ़नकारों के हमरा 10 दिसंबर को परफॉर्म करने आ रहे हैं, जिसमें भारत समेत पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद होगी। नौशीन वसीम का कहना था कि फ़नकार मोहब्बतों को फ़रोग़ देते हैं और हमें उनका साथ देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने सऊदी अरब में अपने हम मनसब शहज़ादा हामिद बिन मोहम्मद अल शेख से मुलाकात की और ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर का दौरा किया, जबकि वज़ारत इंसानी हकूक़ के साथ लेबर के हकूक़ के लिए 2 याददाश्तों पर भी दस्तखत किए हैं। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मसरूफ़ दिन गुजारा, जहां उन्होंने सऊदी वज़ारत तालीम का दौरा किया। सऊदी वज़ीर तालीम हामिद बिन मोहम्मद अल शेख से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने सऊदी ऑनलाइन सेंटर का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें कोविड-19 के बाद सऊदी अरब में शुरू होने वाले ऑनलाइन सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर तालीम ने ऑनलाइन सेंटर्स के मुख्तलिफ स्टूडियोज का दौरा भी किया और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बच्चों की तालीम और तरबियत के मराहिल को सराहा। आज मुख्तलिफ चीज़ें हमने की हैं, हमने मिनिस्ट्री में मीटिंग्स की हैं, जो कि हमारा जो आपस का रिलेशनशिप है उसको मज़ीद बढ़ाने में मददगार होगा। और उसके बाद जो इनका डिस्टेंस लर्निंग का जो एक पूरा निज़ाम है उसके बारे में मीटिंग्स हुई, बड़ा उसको गौर से देखा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व मेहनत का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी वर्कर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यादाश्तों पर दस्तखत किए। सऊदी वज़ारत मेहनत के हुकाम के अलावा पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने भी दस्तखत किए। नाज़रीन, इस्लामाबाद में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए मेले का इनेकाद किया गया। खरीदारों की बड़ी तादाद ने कार मेले का रुख किया। शहरियों ने इसे गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का आसान जरिया करार दिया है। रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में सजा गाड़ियों का मेला, गाड़ियां फरोख्त करने वालों को मिले बड़ी तादाद में खरीदार। मेले में सजी गाड़ियों में शहरियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले इस मेले में मुख्तलिफ वैरायटी की गाड़ियां मौजूद थी। शहरियों का कहना था कि मेले से गाड़ियों की खरीद और फरोख्त आसान हो गई है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और गाड़ियों का जो सारा सेटअप इन्होंने किया है वो भी बेहतरीन है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत अच्छा मेला का इनेकाद किया उन्होंने। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ, अनप्रेसिडेंटेड लोग आए हैं। मेले में शरीक अफराद का कहना था कि इस तरह के मेले मुस्तकबिल में भी मुनक्किद होने चाहिए। कैमरामैन अनीस रहमान के साथ हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।
मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। आसमान से गिरती बर्फ के नज़ारे देखने के लिए सयाहों ने गिलियाद का रुख कर लिया है। बदलते मौसम के बारे में जानेंगे इस रिपोर्ट में। उसे कहना दिसंबर आ गया है। दिसंबर सर्दी से ठिठुरते मौसम की नवीद ले आया। शिमाली पहाड़ी इलाकों मालम जब्बा और सवात के पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई। एबटाबाद, नथिया गली, छांगला गली और अयूबिया में बर्फबारी के बाद सयाह भी मौसम का मजा लेने के लिए पहुंचने लगे। वादी सवात के इलाके मिंगोरा में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों शिगर, गांचे, खरमंग में भी बर्फबारी हुई। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत रेजिडेंसी और दीगर मकामात हसीन मनाजर पेश करने लगे। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत, तुर्कान, मेहतरजई में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। बर्फबारी के बाद कई सड़कें भी बंद हो गयी। मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद स्मॉग में कमी आ गई। मरी और कश्मीर के बाज़ इलाकों में भी बारिश हुई। सराय आलमगीर में भी बारान रहमत से लोगों ने सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। पीर से मैदानी इलाकों में धुंध बढ़ जाएगी। पंजाब के इलाकों गुजरावाला, नारोवाल, लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरात में मतला अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। पाकिस्तान एयर फोर्स ने 30वां चीफ ऑफ एयर स्टाफ चैलेंज कप पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट देखिए। पाक फिजाइया ने 30वां चीफ ऑफ एयर स्टाफ चैलेंज कप पोलो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। एक सनसनीखेज मुकाबले में पीएएफ ने पीएएफ ब्लू को 5 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक इस टूर्नामेंट में पीएएफ ब्लू, पीएएफ व्हाइट, आसियान कालाबाग, बोक्योवाल, बुराक ASC, हाकवाना मठाटा और PBG की टीमों ने शिरकत की। फाइनल के मेहमान खसूसी सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए इवेंट के कामयाब इनेकाद पर क्लब इंतजामिया काबिल तारीफ है। नौजवानों की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए खेल बहुत जरूरी है। नाज़रीन, दुनिया की मौमर तरीन टेस्ट क्रिकेटर एलन ऐश 110 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। एलन ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और 1949 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेला था। दाएं हाथ की फास्ट बॉलर एलन ने करियर में 10 विकेटें हासिल कीं। ECB ने एलन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो ख़वातीन क्रिकेट की बानियों में से थीं। क्रिकेट के अलावा एलन ऐश ने बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के लिए भी जंग अजीम दोइम के दौरान काम किया।